السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں صدرا میر اور میں ہوں صبا شیخ، اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جاری ہے اور خواجہ آصف اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ساری عوام مجھے یقین ہے اس ایشو پہ جذباتی ہے۔ جناب اسپیکر، پاکستانی قوم کو، پاکستانی سیاستدانوں کو، پاکستانی حکومتوں کو ایک ایسا رستہ اپنانا ہوگا جس سے ایل او سی کے اس پار جو ہے یہ یقین ہو کشمیریوں کو کہ ہمارے پاکستانی بھائی جو ہے ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں، اور آج بھی ان کی کمٹمنٹ کشمیر کاز کے ساتھ اسی طرح ہے جس طرح سن 1948 کی جنگ میں تھی جو ہم نے کشمیر کے لیے لڑی، جب 1965 کی جنگ میں تھی جو پھر ہم نے کشمیر کے لیے لڑی، اور اس کے بعد جو ہے مختلف جنگیں ہم نے لڑی۔ سیاچین جو ہے وہ ایک مستقل محاذ جنگ ہے اور وہ بھی کشمیر کا محاذ جنگ ہے۔ کارگل کی جنگ کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ بھی کشمیر کے لیے لڑی گئی، چاہے مقاصد اس کے کچھ اور تھے۔ جب تاریخ میں ہماری قربانیاں جو ہیں کشمیر کاز کے لیے وہ لاتعداد ہیں، ان گنت ہیں۔ ہماری تاریخ 75 سالہ جو ہے بھری پڑی ہے کشمیر کے ساتھ، ہماری وعدہ افا اور ان کے ساتھ وفا کرنے کی، لیکن پچھلے 3 سال میں وہ وفا جو ہے وہ معدوم ہو گئی، وہ مدھم پڑ گئی۔ اس کے اوپر ہمارے اپنے مفادات، ہمارے اپنے گروہی مفادات، ٹرانزیکشنل جو ہے ہمارے جو بینیفٹس جو تھے وہ اس پہ حاوی ہو گئے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ کل عمر قید ہوئی اس کشمیر کے بیٹے کو، تو اس نے بھیک نہیں مانگی اپنی جان کی، اس نے صرف اتنا کہا کہ دہشت گرد ہوں میں تو مجھ سے 7 وزیر اعظم ہندوستان کے کس طرح ملے، مجھے پاسپورٹ کیوں دیا گیا، ان کو پاکستان بھی آنے دیا گیا، وہ یہاں بھی آئے، کوئی کیس نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ افضل، مجھے ان کا فیملی نیم بھول رہا ہے، جن کو پھانسی لگایا گیا، افضل گرو، ان کو جب پھانسی لگایا گیا ان پہ بھی کوئی الزام نہیں تھا۔ بچے، بوڑھے، عورتیں، نوجوان، جتنے ان پہ ظلم توڑے جا رہے ہیں، اور باقی ہندوستان میں بھی مسلمانوں پہ جتنے ظلم توڑے جا رہے ہیں، وہ ایک جینوسائیڈ کی جو ہے شیپ لے گی، ایک جینوسائیڈ کی شکل اختیار کرے گی، اور دنیا خاموش ہے۔ ہمارا سیولائزڈ ویسٹرن ورلڈ جو ہے اس کو یوکرین پہ جو بھی ہو رہا ہے، میں اس یوکرین کی جنگ کے اوپر کمنٹ نہیں کر رہا، لیکن یوکرین کے اوپر ان کو جو ہے بڑا ہوک اٹھتی ہے، بڑا درد اٹھتا ہے، لیکن کشمیر، فلسطین، غزہ، روہنگیا، ان مسلمانوں کے بارے میں جو ہے سیولائزڈ ورلڈ جو ہے وہاں پہ سینکڑوں مر جائیں، وہاں پہ ان کے کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ اور یوکرین کے لیے $40 بلین جو ہے امریکہ ریز کر رہا ہے وہاں پہ ان کی امداد کرنے کے لیے۔ یہ دو رخی پالیسی ہمارے ترقی یافتہ جو اقوام ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح میں نے خبر اخبار میں پڑھی، اور میں نے کہا کہ مجھے وہاں پہ جانا چاہیے۔ میرے یہاں پہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
لیکن نہ مجھے میری سیاست جہاں پہ کھینچ کے لائی ہے، مجھے انسانیت یہاں پہ کھینچ کے لائی ہے۔ اور میں لوگوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 22 سال بعد بیٹی عطا فرمائی ہے، تو جب یہ واقعہ میں نے اخبار میں پڑھا تو یہ سمرین جس کا اپنا جو ہے آج زیادتی کی گئی، مجھے بالکل ایسے لگا جس طرح یہ میری بیٹی ہے، اس قوم کی بیٹی ہے۔ ایسے واقعات اپنا جو ہے نا وہ ماں باپ کے دلوں کو چیر دیتے ہیں، اور روز ماں باپ جیتے ہیں، روز مرتے ہیں۔ 5 بیٹیاں ہیں، 5 بیٹیاں، اور چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، وہ رو رہی ہیں، اور ایک بیٹا ہے باپ کے سامنے۔ باپ تو اپنا جو ہے بیٹی کو بھوک میں بلکتا نہیں دیکھ سکتا، باپ کے سامنے زیادتی ہوئی ہے۔ تو یہ کام لاہور بیٹھ کے بھی میں کر سکتا تھا، لیکن میں ان کے دکھ کو محسوس کرنے آیا ہوں، کسی کو دکھانے نہیں آیا۔ میں ان کے آنسو دیکھ کر ایک جذبہ لے کے جا رہا ہوں کہ ہم دن رات ایک کر کے ان درندوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں، اور ایک مثال قائم ہو۔ یہ دن بدن بڑھتی ہوئی اپنا لاقانونیت اور اس طرح کے واقعات جو ہیں، یہ ہماری سوسائٹی پر ایک سوالیہ نشان ہے، اور یہ چیلنج ہے جس کو میں نے قبول کیا ہے، اور میری کوئی اوقات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمارا توکل ہے۔ میں نے آتے ہی آئی جی پولیس کو کہا تھا کہ آئی جی صاحب، میں آپ کو کسی کی سفارش نہیں کروں گا، تمام افسران کو آپ میرٹ پر، ان کی قابلیت پر، ان کی آنیسٹی پر آپ لگائیں، اور آپ اپنا جو ہے ان سے رزلٹ لیں، کیونکہ سیاست ہوتی ہے اور نہیں ہوتی ہے، میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دوں۔ تو میں یہاں پر کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، آپ کے سامنے ہے یہ جس طرح یہاں پر رشوت لے کر لوگوں کو لگایا جاتا تھا، میں انشاءاللہ تعالیٰ صوبے کی عوام کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ نیت سے کام کریں گے، اللہ پہ توکل کر کر ایک خلق خدا کی خدمت سے آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی مخلوق کی خدمت کا کام لے۔ اور یہ فورنزک لیب یہاں سے ہی اپنا جو ہے وہ زینب جب بیچاری اس کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا تھا، 400-500 اپنا جو ہے سیمپلز لیے گئے تھے، تب جا کر گنہگار جو ہے اس کو پکڑا گیا تھا۔ اور فورنزک لیب جو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ادارہ ہے، جہاں سے عسکری اور ہماری سول جو ادارے ہیں انٹیلیجنس کے، وہ وہاں سے کام لیتے ہیں، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں وہاں سے اپنا جو ہے وہ سیمپلنگ لی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی مدد سے ہم اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلد ان درندوں تک پہنچیں گے، اور نہ صرف ان کو گرفتار کریں گے بلکہ ان کو کیفر کردار، ان کو اپنا جو ہے نا وہ قرار واقعی سزا ملے گی انشاءاللہ۔ اچھا حمزہ صاحب، ایسا ہے کہ شہباز صاحب کے دور میں واقعہ ہوا اور بڑی ایفیشنسی سے ملزمان کو پکڑا گیا۔ سزا کے معاملے پہ پاکستان کی عوام یہ تھی کہ انہیں سر عام لٹکایا جائے، لیکن اس میں NGOs وغیرہ آ گئیں۔ ضلع قصور میں کیا یہ واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 1 ماہ بعد 2 ماہ بعد ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی ریسرچ سینٹر یا اس طرح کی کوئی تحقیق بھی کروائیں گے تاکہ اس طرح کے واقعات اس ضلع میں خاص طور پر کم ہو سکیں؟ اور یہ آپ کا اچھا جسچر ہے کہ آپ آئے ہیں، اور اس سے جو علاقہ مکین ہے، جب ہم نے ان کی رائے لی ہے تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس سے یہ ایک ضرور ہوگا کہ اب 1 ماہ 2 ماہ بعد تو تک جرائم جو ہیں کم ہو جائیں گے، لیکن پھر یہ شرپسند عناصر جو ہیں ایکٹیو ہو جائیں گے، تو اس حوالے سے کوئی سالد اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ جی انشاءاللہ ہمیشہ تو اللہ کی ذات رہنے والی ہے، عہدے آنے جانی چیز ہے،
लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि जब तक अल्लाह ताला ने मुझे इस सूबे की खिदमत की ज़िम्मेदारी अता फरमाई है, मैं दिन रात एक करूँगा। और इंशाअल्लाह ताला मैंने पुलिस को कहा है, बल्कि हम लाहौर से जो बेस्ट पॉसिबल टीम है और जो बेस्ट पॉसिबल प्रोफेशनल्स हैं वो यहाँ पर आकर बैठेंगे। जियो फेंसिंग की मदद से इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो उन दरिंदों तक पहुँचेंगे। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो कानून के शिकंजे का ताकत होती है वो टेस्ट केस होता है। जिस तरह ज़ैनब का मामला जो है टेस्ट केस बना और उस मुजरिम को करार वाक़ई सज़ा मिली, इसी तरह अगर हम अपना जो है दर्दमंदी से पुलिस वाले हम सब मिलकर मिन हैसल कौम इन दरिंदों के ख़िलाफ़ हमने जलगार की तो अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा इंशाअल्लाह। आप समझते हैं कि मुल्क में जो इस वक्त इंतशार फैला हुआ है, लोग जो है प्रोटेस्ट के लिए एक जो सियासी लीडर है वो कह रहे हैं, और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, नहीं सियासी बात नहीं कर रहा, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनका इस वक्त जो फोकस है वो इस वक्त प्रोटेस्टर्स को रोक रहे हैं, और वो कानून जो है इदारे जो है स्पेशली उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है इन चीज़ों को कंट्रोल करना। मैं ये कह रहा हूँ कि जराइम बढ़ रहा है क्योंकि फोकस जो है वो इस वक्त प्रोटेस्ट। मैं आज पुलिस वालों से बात करके आया हूँ जिन्होंने अपनी जानों पे खेल कर कल 12 करोड़ के सूबे को अमन के लिए उन्होंने अपनी जान भी दी है। अकबल कांस्टेबल शहीद के बेटे के आंसू रात को सोते वक्त भी मुझे नहीं भूलते हैं। वो बेचारा बच्चा टप टप उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे जब वो कांस्टेबल शहीद की मैयत मेरे सामने पड़ी थी। तो मेरा ख़्याल है कि सबसे बढ़कर ज़रूरत इस बात की है, इंसानियत जो है ना मुआशरे से उठती जा रही है, एहसास जो है ना एक दूसरे का वो कम होता जा रहा है। तो मैं आज यहाँ पर सिर्फ इनको, इस बाप को जिसकी बेटी को उसके सामने ज़्यादती का निशाना बनाया गया, उसको सिर्फ ये एहसास दिलाने आया हूँ। एक वज़ीर आला नहीं, एक बाप के आंसू पूछने आया है और अल्लाह देख रहा है। और अल्लाह से मैं यही दुआ करके जा रहा हूँ कि अल्लाह मियाँ मेरी मदद फरमाना कि इस बाप के जो आंसू हैं उसको मैं सिर्फ ये इत्मीनान दे सकूं कि हम सब उसके साथ खड़े हैं, और जिस दिन वो दरिंदे पकड़े जाएं तो इस माँ को जो बेचारी रो रही थी अपनी जवान बेटी के सामने उसको भी सुकून आए और हम मुआशरे में इन दरिंदों को जो है करार वाक़ई सज़ा दिलवाएं। बहुत शुक्रिया। सारे रिक्वेस्ट है, सारे कैमरे लगाए जाए, सारे रिक्वेस्ट है जी जी सर रिक्वेस्ट है भी इतने शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ सेफ सिटी बदतौकी में इंसानियत सोज वाक़या। वज़ीर आला हमज़ा शहबाज की मुतासरा लड़की के घर आमद, जिसमें उन्होंने कहा कि दिन रात एक करके दरिंदों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे। मैं दिन रात एक करके बेस्ट पॉसिबल टीम से तहकीकात भी कराऊँगा। आज एक बाप से मिलने आया है। उनका मज़ीद कहना है कि मैं कोई सियासी बात नहीं करना चाहता। मरियम नवाज की शहीद कांस्टेबल कमाल अहमद की रिहाइश का आमद। मरियम नवाज ने शहीद कांस्टेबल की बेवा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़ोन पर बात भी करवाई। मरियम नवाज जो कि आज पहुंची शहीद कांस्टेबल कमाल अहमद की रिहाइशगाह पर, वहां जाकर उन्होंने बेवा से इजहार हमदर्दी किया और इसके साथ साथ शहीद कांस्टेबल की बेवा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़ोन पर बात भी करवाई। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं समा की नुमाइंदा नवीन अली से। जी अपडेट कीजिए। जी अब से कुछ ही देर पहले मरियम नवाज पुलिस कांस्टेबल जो है कमाल अहमद उनके घर पहुंची है। वहां पर पहुंच के न सिर्फ मरियम नवाज बल्कि उनके साथ तमाम मुस्लिम लीग के रहनुमा भी मौजूद थी। वहां पर मरियम नवाज ने बच्चों से मुलाकात की है, कमाल अहमद की उनकी बेवा से बातचीत की है। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें क्या क्या मसाइल हैं तो उनकी बेवा ने, कमाल अहमद की बेवा ने सबसे पहला यही मसला बताया कि उनके पास घर नहीं है, जिस पर मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को कॉल की, उनको इनके हालात बताए और फिर शहबाज शरीफ से कमाल अहमद की बेवा की बात भी करवाई, जिस पर शहबाज शरीफ ने यकीन दिलाया कि ना सिर्फ आपको घर दिया जाएगा बल्कि बच्चों की कफालत, उनकी तालीम का प्रॉपरली जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत पाकिस्तान उठाएगी। और बच्चों को भी प्यार किया, बच्चों के साथ और अपनी बेवा के साथ जो है
कमाल अहमद के लिए फातह ख्वानी की, उनकी मगफिरत की दुआ की और उनको इस बात का यकीन दिलाया कि वो अकेले नहीं हैं, उन्हें इंसाफ दिया जाएगा। उनकी कफालत का जिम्मा, उनकी रिहाइश का जिम्मा, बच्चों की तालीम का जिम्मा मरियम नवाज जो है वो खुद भी उठाएंगी और इसका जो बेड़ा है वो इसका जो है, इसके साथ साथ तो ये भी कहा गया कि जो बच्चों ने अपील की कि उनको इंसाफ चाहिए क्योंकि उनके वालिद को गोली मार कर शहीद किया गया है, तो बच्चों ने इंसाफ की अपील की, जिस पर मरियम नवाज ने यकीन दिलाया कि वो भी हर मुमकिन कोशिश करेंगी कि उनके वालिद को इंसाफ मिले, ये खून रायगा नहीं जाएगा और शहीद कमाल अहमद के बच्चों को भी जो है वो इंसाफ जरूर मिलेगा। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, इंशाअल्लाह अल्लाह आपका ज़रूर कोई वसीला बनाएगा, आपने रोना नहीं। आप बहादुर बेटी हो माशाअल्लाह। इसका पापा भी कहता है ये मेरी बेटी थी। मरियम नवाज का इमरान खान के आज़ादी मार्च पर तबसरा, बोली ये कहते हैं कि पुलिस थी, रास्ते बंद थे इसलिए मार्च नाकाम हुआ। इनकलाब अपना रास्ता खुद बनाता है, वो पुलिस से पूछ कर नहीं आता। आपको न सिर्फ पंजाब बल्कि खैबर पख्तूनख्वा ने भी रिजेक्ट किया। मुकम्मल हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करके भी आप अवाम को ना निकाल सके। इनको एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, बल्कि कौम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। पंजाब से तो एब्सोल्यूट रिजेक्शन है। और फिर अगर ये कहते हैं कि क्योंकि पुलिस थी, रास्ते बंद थे, तो इनकलाब पुलिस से पूछ कर नहीं आता। इनकलाब अपना रास्ता खुद बनाता है। जब अवाम निकलती है तो ना कोई पुलिस, ना कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, ना कोई रुकावट इनकलाब के सामने आ सकती है। तो जो इनकलाब उठते हैं ना, जो झूम के उठते हैं, वो तिनकों से नहीं टाले जाते। 2000 पुलिस वाले 50,000 लोगों को नहीं रोक सकते, लेकिन 200 बंदा अगर आप नहीं निकाल सके, और सिर्फ ये नहीं कि आप पंजाब से नहीं निकाल सके, आपने केपीके गवर्नमेंट की हर चीज इस्तेमाल की, उसके बावजूद केपीके ने भी आपकी आवाज पे लबैक नहीं कहा, तो आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। जत्थे के सरबरा से कहता हूँ तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी, इंतखाबात से मुतालिक फैसला ऐवान ने करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली से ललकार, कहा बातचीत के दरवाजे खुले हैं लेकिन नियाजी साहब किसी भूल में न रहना, तुम हमें मरूब नहीं कर सकते, डिक्टेशन घर में दो, ऐवान को नहीं। बिल पास करके शफाफ इंतखाबात की बुनियाद रख दी है, पाकिस्तान को अजीम बनाने के लिए जान लड़ा देंगे। मैं ये बात वाज़े कर देना चाहता हूँ जत्थे के सरबराह को, हमारी डिक्टेशन नहीं चलेगी। हमें शफाफ इलेक्शन कराने हैं, कब कराने हैं ये हाउस खुद फैसला करेगा। हुकूमत की जो मियाद 1 साल 2 महीने है, बात इलेक्शन की थी, ऐवान में आते, बातचीत के दरवाजे खुले। इमरान खान न्याजी किसी भूल में न रहना। अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम हमें मरूब कर लोगे, ब्लैकमेल कर लोगे, डिक्टेशन दोगे, तो अपने घर में दो। इस ऐवान को मत दो ये डिक्टेशन, इस ऐवान को मत दो ये डिक्टेशन। ये बिल पास करके आइंदा के लिए शफाफ इलेक्शन की बुनियाद रखती है। सब्सिडी न होने के बावजूद पेट्रोल कीमतें जो आज दुनिया भर में आसमानों से बातें कर रही हैं, उसकी कीमतें कम करके हमारे लिए एक बारूदी सुरंग बिछा गया। पिछली हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, उसको ठीक करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जान लड़ा देंगे पाकिस्तान को अजीम बनाने के लिए। और अब आपको बताते हैं कि पीटीआई के लॉन्ग मार्च और धरने का क्या बना। इमरान खान काफिला लेकर इस्लामाबाद पहुंचे मगर फिर वापस चले गए। कारकुनान से खिताब में कहा कि हुकूमत को डेडलाइन दे दी है कि 6 दिन में असम्बलियाँ तहलील और नए इलेक्शन का ऐलान ना किया तो दोबारा लाखों अफराद को लेकर इस्लामाबाद आएंगे। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारियों और शेलिंग के नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूँ। आपको मैं 6 दिन दे रहा हूँ। 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें, जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबलीज डिसॉल्व करें। इलेक्शन की तारीख लिए बगैर इमरान खान इस्लामाबाद से लौट गए। सरबरा तहरीक इंसाफ ने 6 दिन में मुतालबात तस्लीम ना होने पर दोबारा शहर इक़्तिदार आने की धमकी भी दी। 6 दिन
अगर 6 दिन में आपने फैसला ना किया तो मैं सारी अपनी कौम को लेके इंशाल्लाह इस्लामाबाद आऊंगा। जिन्ना एवेन्यू में कारकुनों से खिताब में कहा कि लॉन्ग मार्च को फेल करने की साजिश नाकाम हो गई। उन्होंने दावा किया कि तहरीक इंसाफ के 2 कारकुनान को शहीद किया गया। हुकूमत मुल्क को इंतशार की तरफ ले जा रही है। सरबराह तहरीक इंसाफ ने गिरफ्तारियों और डी चौक पर शेलिंग का सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया। इमरान खान का काफिला रात 11 बजे इस्लामाबाद में दाखिल हुआ था। इससे पहले चेयरमैन पीटीआई ने कारकुनों को डी चौक पहुंचने की हिदायत की थी। इमरान खान की वापसी के ऐलान के बाद अब डी चौक पर जमा होने वाले कारकुन भी घर चले गए हैं। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। सामने लाया। तो एक और चीज़ जहाँ पे मैं तो मीडिया में मैं कहता हूँ कि मैं वो बात नहीं करूँ जो किसी को बुरा लगे। कभी मीडिया में नहीं आता हूँ, फिर आप लोग पूछते हैं कि उसने ये बयान दिया, उसने वो बयान दिया। मैं किसी के बयान के जवाब देना नहीं चाहता क्योंकि मैं इसके लिए नहीं आया। अल्लाह ताला ने हमें ये इज़्ज़त दिया है, हम एक आएँ और अपने लोगों के लिए क्या कर सकते हैं वो करें। तो इसीलिए मीडिया से काफ़ी दूरी का मकसद यही था कि मैं इन चीज़ों से क्योंकि मैं किसी का बयानों का जवाब नहीं दूँ और उसे फिर अच्छा नहीं, मैं क्रिटिसाइज पे वो नहीं करता हूँ कि मैं वो करूँ किसी के खिलाफ बात करूँ या चीज़ें करूँ। बहरहाल अल्लाह जिसको मौका दे वो डिलीवर करे, उसका हक बनता है। अल्लाह ने हमें दिया है, हम कोशिश करते हैं। लोग बातें करते हैं कि ये है वो है। आज के एतमाद लोगों का उठ गया है, MPs का एतमाद उठ गया, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें दम तोड़ गए और साबित हो गया कि जो तहरीक पेश किया उसका जो टेबल करने का भी 13 बंदों का वो जो पूरा नहीं हुआ, ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है और मैं इसका मशकूर हूँ। और हम इंशाअल्लाह पहले भी काम कर रहे थे और मज़ीद इंशाअल्लाह काम करेंगे अवाम के लिए, अवाम लोगों की बेहतरी के लिए, भला की सूबे की तरक्की के लिए। जहाँ भी हो सके हम इंशाअल्लाह पीछे नहीं हटेंगे और यही चीज़ें हमारी मकसद है। बाकी ये जो चीज़ें दरमियान में आते हैं वो भी लाइफ का हिस्सा है, सियासत का हिस्सा है, उनको फेस करना पड़ता है, लेकिन उसको हम इतना उसमें। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे जिसमें उनका कहना था कि हम पहले भी काम कर रहे थे और इंशाल्लाह अब भी अपना काम करते रहेंगे। पाकिस्तानी नौजवान अबूजर अफजल को नाइजीरिया में दहशतगर्दों ने 2 माह से यरकमाल बना रखा है। मुतालिबात पूरे ना होने पर जान से मारने की धमकियां दी जाने लगी हैं। बिल्कुल, पाकिस्तानी नौजवान अबूजर अफजल की वीडियो जारी कर दी गई है। फौरी मदद की अपील की गई है जिसमें उनका वीडियो पैगाम है कि मुझ समेत 63 अफराद 28 मार्च से अगवा हैं। हुकूमत पाकिस्तान और आलमी बरादरी मदद करे। उनका कहना है कि मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में हूँ। नाइजीरिया में दहशतगर्दों ने 2 माह कबल ट्रेन पर हमला करके अबूजर समेत मुतादिद मुसाफिरों को अगवा किया। हर गुजरते दिन के साथ अबूजर के वालिदैन की परेशानी बढ़ती जा रही है। इससे मुतालिक मजीद बात करते हैं मुकर्रम खान से। मुकर्रम, बताइए क्या तफसील है? जी बिल्कुल, मुल्तान ज़िक्रिया टाउन के रिहायशी 32 साला अबूजर अफजल जो हैं पिछले 2 साल से मुकीम हैं नाइजीरिया में और उनको जो है वहाँ दहशतगर्दों ने पिछले कुछ दिनों में जो है वो किडनैप कर लिया है और मज़ीद जो है उनके वालिदैन मेरे साथ मौजूद हैं परेशानी की हालत में। इनका क्या कहना है, क्या मुतालबात हैं? दहशतगर्दों की तरफ से हुकूमत नाइजीरिया से वो मुतालबात कर रहे हैं कि हमारे कुछ आदमी उन्होंने पकड़े हुए हैं वो छोड़ दें। ज़हर तो यही है, ना हुकूमत बताती है ना वो बताते हैं हमको। पैसे नहीं मांग रहे, किसी किस्म की पैसे की उन्होंने डिमांड नहीं की, ना हमसे की है ना कंपनी से की है, कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो उन्होंने अभी अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 7 दिन के अंदर अंदर ये मामला गवर्नमेंट नाइजीरिया ने हल ना किया तो हम मुगवियान को जो है मारना शुरू कर देंगे। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा से, चीफ जस्टिस से, जनरल कमर जावेद बाजवा से और जितना भी
हुकूमत में बड़े मौजूद हैं, हम अपील करते हैं कि खुदारा हमारी मदद की जाए। हमारे जो बिल्कुल इनकी जानिब से ये कहना है कि पाकिस्तानी ही जो वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनसे अपील की जा रही है कि वो नाइजीरियन हुकूमत से जो इस बारे में बात करें और जल्द से जल्द हमारे बच्चे को बाजियाब करवाएं। दुनिया के 69 ममालिक में 9000 से ज़ायद पाकिस्तानी कैद हैं। वज़ारत ख़ारजा की दस्तावेज़ात में अहम इंकशाफात सामने आ गए। इस पर मज़ीद बात करेंगे समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट के हेड जाहिद गिशकोरी साहब से। जाहिद गिशकोरी, हमें ये बताइएगा कि इन डॉक्यूमेंट्स में मज़ीद क्या इंकशाफात हैं और जो 9000 से ज़ायद पाकिस्तानी कैद हैं, ये कब से कैद हैं और हुकूमत ने इस बारे में क्या इक़दाम किए अब तक? देखिए, ये 9000 से ज़ायद पाकिस्तानी हैं 69 ममालिक में। कई सालों से ये वहाँ पर मुख्तलिफ जेलों में हैं। उसमें हमें बताया गया है फॉरेन ऑफिस के सोर्सेज से 3000 से ज़ायद पाकिस्तानी हैं जो कि बिल्कुल छोटे छोटे जराइम में मुलव्वस थे वहाँ पर। उनमें 1200 ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनका बताया जा रहा है कि छोटी छोटी सी अमाउंट उनके अगेंस्ट है, जुर्माने हैं जो वो अदा नहीं कर सकते और मुख्तलिफ ममालिक में जेलों में हैं। जबकि मैं आपको बताता चलूँ कि 80% पाकिस्तानी हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वहाँ पर मुख्तलिफ जेलों में हैं। जिस तरह सऊदी अरब में 2500 से ज़ायद पाकिस्तानी हैं, फिर 1600 से ज़ायद पाकिस्तानी UAE में हैं, इसी तरह से चीन में और पाकिस्तान के कुछ शहरी अमेरिका में भी वहाँ पर मुख्तलिफ जेलों में हैं। फिर 268 पाकिस्तानी बरतानवी जेलों में हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो छोटे छोटे जराइम में हैं या जिन्होंने जुर्माने देने हैं, अगर हुकूमत पाकिस्तान उनका केस देखे तो ये बताया जा रहा है सोर्सेस से कि 3000 पाकिस्तानी रिहा होकर वापस आ सकते हैं पाकिस्तान। जी, अपडेट कर रहे थे इस सिलसिले में, आपका शुक्रिया जाहिद गिशकोरी। वो चले तो दावे उरूज पर थे, वो बड़े तो खिलाड़ी मुश्किल में थे। लाठियां, शेलिंग सब बर्दाश्त किया, मीलों का सफर तय करके इस्लामाबाद की चौरंगी घूमकर वापस हो लिए। इस्लामाबाद में इनकलाब के यू टर्न पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। इलेक्शन डेट चाहिए हमें और असेंबली डिसॉल्व। हमें जितनी देर वहां रहना पड़े इस्लामाबाद में हम रहेंगे। 20 लाख लोग लाएंगे, इलेक्शन का ऐलान करा के जाएंगे। तारीख न दी तो यहीं बैठ जाएंगे। इमरान खान ने चैलेंज दिया, रोक सको तो रोक लो, लॉन्ग मार्च आया रे। कल पख्तूनख्वा से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जुलूस लेके निकल रहा हूँ इस्लामाबाद की तरफ। कोई भी रोकना चाहे हमें रोक के दिखा दे। कप्तान कंटेनर पर चढ़े, इस्लामाबाद की जानिब बढ़े। कप्तान की कॉल पर खिलाड़ियों ने शेलिंग बर्दाश्त की, लाठियां खाई, रुकावटें हटाई और मंजिल तक पहुंचे। लेकिन इस्लामाबाद पहुंचते ही इनकलाब ने यू टर्न ले लिया। जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबलीज डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। लॉन्ग मार्च के शॉर्ट रन पर तलाल चौधरी ने यूं तंज किया। डट के खड़ा था जो कप्तान, नस गया जे ओ इमरान। यूथ ये सारे पुछदे ने, दसते जा कुछ कप्तान। सानू सड़कां ते रोल के हैली ते चढ़िया जे कप्तान। इमरान खान तारीख लेने आए थे, तारीख देकर चले गए। 6 दिन बाद मुतालबा पूरा न हुआ तो क्या लोग फिर कप्तान की आवाज पर लब्बैक कहेंगे? इमरान खान के खिताब के दौरान कासिम सूरी ने लुकमा दिया, कहा खान साहब थोड़ा इस्लामिक टच भी दे दें। कासिम सूरी की सरगोशी के बाद इमरान खान ने कैसे इस्लामिक टच दिया, आपको दिखाते हैं। थोड़ा इस्लामिक टच भी दे दें, की भी मिसाल दे दें। तो सुने, अब सुने गौर से। मैं हूं एक जो अपने आप को आशिक रसूल कहता हूं। मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोअर हूं और मेरे नबी ने हमें एक चीज सिखाई थी कि इंसानों को इकट्ठा करना है, तकसीम नहीं करना। मेरे नबी रहमतुल्लाह अलैहि थे।
सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। मेरी भी पूरी कोशिश है कि मैं अपने सारी कौम को इकट्ठा करूं, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कौम इकट्ठी हो रही है।